नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियां। तो आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है एक सक्सेसफुल डांसर के रूप में खुद को स्थापित करने वाली प्रियंका लोटंकर की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में इनकी मां ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी हाँ, ये अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती है, जिन्होंने हमेशा इनकी कला पर विश्वास जताया और हमेशा इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मां के प्रोत्साहन के कारण ही इन्होंने नृत्य के अपने इस सफर को आगे बढ़ाया और फिर डांस में ही ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से भरतनाट्यम में मास्टर्स भी किया। आज इन्होंने इस क्षेत्र में एक सफल मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, ये आज एक प्रोफेशनल डांसर है और पिछले 5 सालों से सुधा चंद्रन डांस एकेडमी से भी जुड़ी है। साथ ही ये अपनी डांस एकेडमी नृत्य विद्या पिवट ऑफ डांस की ऑनर भी है, जिसकी स्थापना इन्होंने वर्ष 2006 में की थी, जिसे ये वर्तमान में सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। इसके अलावा ये बतौर डांस टीचर कई डांस इंस्टीट्यूशंस और डांस स्कूल्स में डांस सिखाती है। साथ ही कई सारे डांस शोज और डांस फेस्टिवल्स में कोरियोग्राफ भी कर चुकी है। आपको बता दें कि नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की फाउंडर एंड डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर कनक रेले को अपना रोल मॉडल मानती है, क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में अब तक जो कुछ भी इन्होंने सीखा और जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की, ये सब इन्हीं की देन है। एक डांसर बनने की इनकी ये जो यात्रा है वो आज कई लोगों को प्रेरित करने वाली है दोस्तों। तो आइए अब इनकी सफलता की इस कहानी के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं एक सक्सेसफुल डांसर बनने की इनकी पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Namaste, myself Priyanka Shetty Loprankar. I have done my masters in Bharatanatyam from Nalanda Nrityakala Mahavidyalaya in Mumbai University. I was associated with Sudha Chandran Shri Dance Academy in Natya Mayuri for last 5 years. Then I founded my own dance academy named Nritya Vidya Pivot of Dance in 2006. I have nourished it as my baby. So yes, very attached with my institution. I've got associated with and honored as a General Secretary of Sports Dance Association in Mumbai Suburban. And then I'm a dance teacher in DG Kitan International School from 2010. I've performed in many dance shows, dance festivals, and choreographed them itself. My childhood was very normal. With the joint family. I was there with my parents as well as my uncle and aunt. So yes, it was very fun to be with them. And regarding dance, I would like to mention few things. From childhood, I was not interested in dance as such. But my mother was pushed me a lot in it. I would like to mention, this is not a good thing to mention, but still, I used to cry before every my dance performance. I never wanted to be on stage. There was some fear in me, but my mother was used to just be behind me, go and perform and you enjoy. But dancing so good. I never had that confidence. And my mother gave me that confidence that yes, you can do it. And I was not listening at her at that time. I used to really hate her. But nowadays, yes, I feel really great about that. She pushed me, but because of her, I am here today, what I am today. So I feel really good about to share this experience that yes, I used to cry every time, every moment of that before going on stage. That mama, I don't want to go, but yes, now I feel really good about it. Yes, because of her, I'm in this field today. Thank you, mama. As such, I was not having any struggle in my life, in my career.
But then, yes, I had a turning point where after 10th, which field to choose? ऑप्शन थे हमारे पास आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स. मुझे साइंस नहीं जाना था, कॉमर्स भी नहीं चाहिए था, बचा था आर्ट. आर्ट में भी ऐसे क्वेश्चन मार्क था कि मैं करूँ क्या. So there again, my mother came up and said, "Hey, you have to go somewhere." I was like, "Where?" So her friend had recommended this college, which was Nalanda Nrityakala Mahavidyalaya. Again, it's a Nrityakala Mahavidyalaya. So it's a dance college. Again, I was like, "Mom, again a dance field." So I was like, चलो देखते हैं क्या है, क्या करना है. वहाँ पे गए हम. I went with my mark sheet. So principal told me, "Arey, you have got such a great marks. So don't come here. Go for science." I was like, "No, I don't want to go there." Then she said, "Okay, fine. You can come here, no problem. But yes, you have to learn your dance as well as the theory. Are you ready for it?" I was like, I don't know. There also I got confused, like what to do. Is there a dance with such theory? Because we had done our dance course, hobby class course, where we used to had few things about theory and more on dance. So then I like, okay, अभी माँ के लिए ये भी करके देखता है, चलो. So that was just my the sentence कि okay, चलो कर लेते हैं ये भी. फिर कॉलेज में गए, एडमिशन ले लिया, जून से शुरू हुआ कॉलेज. सब कुछ नया था, सब कुछ नया. It was not like a normal college. वहाँ पे एक तो सिर्फ मतलब यस लड़कियां, छोटा सा कॉलेज, पर डांस क्या होता है वहाँ पे जाके पता चला. पहले सीखा था 7 साल भरतनाट्यम हॉबी क्लास में, बट देन कॉलेज में जाने के बाद इट वाज लाइक आई एम नथिंग. मैंने कुछ भी नहीं सीखा ऐसे लगा मुझे. फ्रॉम स्क्रैच वी हैव स्टार्टेड. पूरी बहुत 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 हार्डवर्क के बाद हमें हमारी डिग्री मिली. फिर हमने मास्टर्स किया, बहुत अच्छा लगा. I'm grateful to my mother कि हाँ, she had introduced me that college. मुझे नहीं करना था तो फिर भी मैंने किया. बट वहाँ पे जाने के बाद एक लाइक फर्स्ट एग्जाम पास आउट हो गया, उसके बाद पता चला कि हाँ, मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ. आई एम ऑल्सो अ गुड डांसर. तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, आई हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ गुड डांसर. तो उसके बाद बस जर्नी स्टार्ट हो गई एंड दिस हियर आई एम. मेरे लाइफ में एक ही रोल मॉडल रही है, डॉक्टर पद्मश्री कनकरेली जी. शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, जिनकी वजह से ही हम इतने सारे बच्चे ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में हम सीख रहे हैं, हम डिग्रियां ले रहे हैं, वो बस उन्हीं की देन है. उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच गए. सो थैंक यू सो मच कनक मैम फॉर गिविंग अस सच काइंड नॉलेज टू अस. थैंक यू सो मच. डांस एक नृत्य साधना है. इस साधना को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसका शिक्षण लेना भी बहुत जरूरी है. सो ये शिक्षा लेते वक्त आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से सीख रहे हो, आप कौन सा गुरु चुन रहे हो. गुरु चुनना भी बहुत बड़ी बात होती है. सो यू हैव टू करेक्ट योर, यू हैव टू राइटली यू हैव टू चूज योर गुरु. आजकल सी द बेसिकली द जर्नी ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ 5 to 6 years. So there people go for and hunt for hobby classes. Even there, for hobby classes, you should go for authorized hobby class. Okay. People will give you the recommendation of, yes, I do have this certification, I do have that certification. So my suggestion to all parents, please do verify that certification. From where they are giving their exams, from where they are associated with, or is it reliable, or is it true that whatever they are providing, whatever they are giving their certification, please go through, enroll your child in such course. Then after, yes, in Mumbai we do have such great college of dance,
from Mumbai University named Nalanda Nrityakala Mahavidyalaya. You can enroll here, you can pursue your study. Then there are many institutes where yes, you can pursue your dance courses in this field. So my success mantra is just believe in yourself. Whatever happens to you, whatever will come to you, you have to believe in yourself. You have to stand by your own side. People will come to help you. Yes, people are there to help you. But if you will not stand, you will not take that stand for yourself, nobody is going to help. So yes, you have to stand firm for yourself. To survive in this field, to start up your classes, the major hurdle is a place. कि कहाँ से हम शुरुआत करें अपने डांस इंस्टीट्यूट. मुझे भी आई थी, मैंने भी बहुत सोचा इसके बारे में. फिर एक स्कूल में मैं लैंड अप हुई कि स्कूल में जाके हम वो जगह रेंट पे लेके वी विल स्टार्ट विद. वैसे आई स्टार्टेड विद इन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल which is in Mumbai only. So I've started with 4 to 5 students, and I was there with that place for 10 years. And after again I shifted to one studio. Then our lockdown came. So again was the big question, what to do with now? कैसे करें, क्या करें? तब एक वापस नई जर्नी शुरू हुई with online classes. Initially it was really difficult for me also and for my two students also. कि कैसे होगा कि नहीं होगा, that was the big question. But then सोचा था कि रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे, रुकना क्यों है. बस फिर शुरू किए अपने ऑनलाइन क्लासेस. स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई, पर ठीक है, इवन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पेरेंट्स ने अच्छा सा सपोर्ट किया. सो इट वेंट रियली वेल. आज मेरे पास खुद का अभी स्टूडियो है, खुद की जगह है, भगवान की कृपा से, पेरेंट्स की कृपा से. तो बस ये जो जगह का क्वेश्चन होता है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से टैकल कीजिए, अच्छे से मैनेज कीजिए, तो आपका एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट होल्डर आप अच्छे से फ्लरिश कर सकते हो. कोविड टाइम बहुत दिक्कतें आई उसमें. जैसे कि मैंने मेंशन किया, ऑनलाइन टीचिंग में तो दिक्कत आई ही, बट कुछ बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है. पेरेंट्स वर पिस्ड ऑफ विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, पर बच्चों को सीखना था. तो वहां पे एज अ टीचर मेरा भी काम बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि उनकी हेल्प. सो आई हैड, मतलब ऐसे नहीं बताना चाहिए, पर अगर किसी को हेल्प हुई ये सजेशन लेके कि आप खुद रोको मत और दूसरों को भी रोकना मत. अगर बच्चे नहीं फीस पे कर पा रहे तो ठीक है, आज नहीं तो कल वो कुछ तो मैनेज हो जाएगा, यहाँ से नहीं तो वहां से कुछ तो मैनेज हो जाएगा. तो ये सोच के बहुत सारे बच्चों की फीस कंसेशन दिया, किसी को बस ऐसे ही चलो ओके कर लो, कोई बात नहीं. जैसे जितना खुद को पॉसिबल हो सके उतना हमने किया. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ऐसे शेयर करना, मतलब नॉट एट दैट लेवल कि हाँ हमने बहुत बड़ी बात की, नहीं, बहुत छोटा सा काम किया, बट सामने वाले को वो बहुत बड़ा लगा. एंड आज भी लोग थैंकफुल फील करते हैं इसके लिए कि हाँ हमने उनकी पढ़ाई रोकी नहीं, हमने उनकी ट्रेनिंग रोकी नहीं. So yes, it's a grace of God, it's a grace of everyone that we didn't stop anyone and no one could stop us. Today is the opportunity to build your tomorrow. Yes, I would like to give this message to everyone, to younger ones, to elder ones, especially to youth. I have seen many of them, I have seen so many young students that they feel and that they are at कि अभी बस हो गया, कि बहुत हो गया है, I don't want to go ahead now, I want a break. And ऐसा बोल के बच्चे आजकल के
मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बोलो आप, या जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है अभी जॉब करना है, ऐसे बच्चे ऐसा ब्रेक के नाम पे लिटरली 1-1 साल 2-2 साल आराम से जिस टाइम पास करते हैं. So please don't do this. Don't just give up like this and utilize this time. जो भी आपको आपकी सिचुएशन हो, जो भी हर्डल हो, जो भी डिफिकल्टीज हो, प्लीज डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, विथ योर एल्डर वंस, विथ योर फ्रेंड्स. डिस्कस करो, उसका सोल्यूशन निकालो और फिर आगे बढ़ो. रुको मत कहीं पे. कि होता है ऐसे कि हम हमें थोड़ा एक ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है, यू गो ऑन अ ब्रेक, यू गो फॉर अ वीक, यू गो फॉर अ मंथ, आई गेस दैट इज इनफ, बट नेवर स्टॉप योरसेल्फ. ओके, सो प्लीज इसको इसे याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी. एंड अब जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने पेरेंट्स का जरूर सुनना, कभी भी उनको डिनाई मत करना. हमें लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ समझ में आ गया है, आपको जरूरत नहीं है बताने की, ऐसी चीजें होती हैं. बट प्लीज विथ ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, डोंट डू दिस. सुनो उनकी बात. वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीजें देखी है, उसी के बलबूते पे वो आज हमें पाल रहे हैं, तो उनकी जरूर सुनो. सो प्लीज डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, do respect your elders and believe in yourself. I would like to thank to my parents, my husband, Mr. Vipul Lokankar, my in-laws, my whole family, my Nritya Vidya family, all students and their parents. Thank you so much for your kind support till date. Thanks a lot. Thank you so much for watching my video. Keep watching such inspirational videos and download the WorkMob app. Thank you. दोस्तों, ये थी एक सक्सेसफुल डांसर के रूप में खुद को स्थापित करने वाली प्रियंका लोटंकर की कहानी. ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं. टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो. जय हिंद, जय भारत.